Hello student, welcome in the final lecture of nitrogen containing compound. In this we are going to learn the preparation of nitro group. Already in last two sessions we have studied about amines preparation and reactions. So let's start with the preparation. Inside it we bought here the alkane with the nitric acid. Simply alkane will give its hydrogen and nitric acid will give its OH, will form the H2O, and both the remaining part, that is after losing hydrogen it remains with methyl group, right? After losing OH it remains with NO2 group. So methyl or NO2 को attach कर दो, you get the nitromethane. Similarly here in the ethane part, after removal of hydrogen and you get the ethyl part, and this is after losing of OH you get the NO2 part. So ethyl and NO2 attach करके you got the nitroethane. But in alkane chapter, we also studied all the higher temperature. This carbon-carbon bond collapsed is called as cracking, right? So ethane में high temperature पे cracking अगर हो जाएगा internally some of molecules में ethane के, so ये जो methyl part is going to attach the nitro part here, and methyl और nitrogen attach होके you get the nitromethane. So in short, you can say that ethane का nitration leads towards the two product, nitroethane and nitromethane. Both product you will get inside it because of cracking, breaking of carbon-carbon bond in ethane. Now similarly in propane, nitric acid, देखो propane में 3 कार्बन है. This first carbon if loses the hydrogen, then NO2 attaches here and you get nitropropane, right? One nitropropane. But similarly, ये middle वाला carbon, बीच वाला carbon, second carbon also can lose the hydrogen and NO2 can attach over here also, and you get the 2 nitropropane. Both possibilities are there, right? Now, if suppose cracking happens inside the propane, तो इस तरह से bond break होगा, तो you get the two options, single carbon and double carbon. Single carbon can attach the nitro group and can form nitromethane, and similarly this 2 carbon वाला option, उसमें nitro group attach होके you get the nitroethane. Yes. So in short you can say that propane का nitration किया हम लोग ने high temperature पे, you can get the 4 possibilities of the product. You can get one nitropropane, 2 nitropropane, nitromethane and nitroethane. So these all 4 possibilities are there. Hence we avoid the nitration of propane because इतना सारा 4 product separate कौन करते बैठेगा, right? Going with the second particular preparation method, RX, with all this particular Na, sodium nitrite, potassium nitrite, silver nitrite. If you react with this, sodium NX, sodium X, potassium and halogen, potassium halide, silver and halogen, silver halide, right? So in remaining thing R and NO2, you get the nitroalkane. Now you bring the third preparation. This is your sodium salt of carboxylic acid. इसके बाजू वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन शुड हैज अ हैलोजन. अल्फा कार्बन पे हैलोजन होना चाहिए. So it's a alpha halogeno sodium salt of carboxylic acid. When react with NaNO2, sodium nitrite, NaCl goes off and NO2 attaches over on the alpha carbon. When we do the hydrolysis of this particular alpha nitro sodium salt of carboxylic acid, the bond cleavage happens on here between these 2 carbon, right? So C double bond O वाला will get the OH. इसको OH मिल जाएगा. You just see here sodium एक hydrogen and CO3. Sodium bicarbonate is formed and H इधर मिल जाएगा तो nitroalkane is formed. Now very simple thing here, see, ये tertiary carbon अगर NH2 पे attach है और अगर हमने एसिडिक KMNO4 यूज किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको ऑक्सीडाइज करके NO2 में कन्वर्ट कर देगा. यस, टर्शियरी ग्रुप अटैच होना चाहिए NH2 में. अगर सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रुप अटैच हुआ NH2 के अंदर, मतलब ये सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन अटैच हुआ NH2 के अंदर, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, विल सी एट द एंड ऑफ दिस सेशन ओनली. सो अभी याद रखना है, NO2 अगर पाना है आपको, NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना है, तो ये टर्शियरी ग्रुप का कार्बन शुड अटैच ऑन NH2. प्लीज मेक श्योर दैट. नाउ दिस इज योर
दिस NO2 अटैच ऑन दिस अल्फा कार्बन, NO2 अटैच का जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, अल्फा पे डबल बॉन्ड है और अल्फा पे नाइट्रो है, तो अल्फा नाइट्रो अल्कीन। अल्फा नाइट्रो अल्कीन का हाइड्रोलिसिस अगर किया मैंने, ठीक है, अल्फा नाइट्रो अल्कीन का हाइड्रोलिसिस किया अगर मैंने, सो bond cleavage will be here and you will be getting here two options, H and OH. So this carbon continuously will get OH, देखो इसने OH लिया और ये कार्बन को कंटिन्यूसली H मिला इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा नाइट्रो अल्कीन्स। सो इधर OH ले लेके इट टर्न डाउन इनटू दी व्हाट, OH, H2O निकल गया और क्या, ये एक ऑक्सीजन के सारे ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, राइट, एंड इसको हाइड्रोजन मिल मिल के यू गॉट दी नाइट्रो अल्केन, फाइन, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड विद द वन मोर प्रिपरेशन, क्या ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड with HbF4 and sodium nitrite with respect to copper, एकदम ध्यान से आप देखिए, ये HCl समझ रहा है तो फटाक से निकल जाएगा बाहर, और BF4 उसकी जगह पर अटैच कर दिया मैंने, सिंपल है। क्या किया मैंने, फास्ट ये Cl हटा के HCl हटा के what BF4 just I placed on that particular part, right? अभी इधर क्या होगा, जैसे हीट दिया मैंने और सोडियम नाइट्राइट ऐड किया तो सोडियम विल टेक आउट दिस BF4, सोडियम ने BF4 को खींच लिया और हीट दिया, इसके लिए N2 goes off and hence ये बचा हुआ NO2 will be attaching onto the benzene ring. So again nitrobenzene is formed here. तो बीच में एक नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन ले लिया हमने, सिंपली सोडियम benzene diazonium chloride whenever react with HbF4 in the presence of sodium nitrite with the copper as a catalyst. So HCl goes off, BF4 अटैच हो गया, पहले BF हीट दिया सोडियम नाइट्राइट डाल के, सोडियम ने BF4 को खींच लिया और NO2 अटैचेस, हीट दिया इसके लिए N2 भी goes off, N2 भी बाहर चले जाएगा और NO2 अटैचेस ऑन दैट प्लेस एंड यू गेट द नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? आगे ट्राइफ्लोरोपर एसिडिक एसिड, ये है ना, याद रखो ये पूरा रिएजेंट है, ट्राइफ्लोरोपर एसिडिक एसिड रिमूव्स नेसेंट ऑक्सीजन, इट रिमूव्स नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकाला और ये अपना नाइट्रोजन ने लोन पैर से उसको पिकअप कर लिया। कैन यू सी दिस? सिंपल, क्या मैं बोल रहा हूं, ये रिएजेंट ने ऑक्सीजन बाहर निकाला, नाइट्रोजन एज अ लोन पेयर, तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर से अटैच कर लिया उसके अपने ऊपर। नाउ सिंपली टॉटोमेरिज्म, ऑक्सीजन बीइंग सो मच इलेक्ट्रोनेगेटिव इट पुल्स दिस डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ऑक्सीजन ने पुल किया डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को अपने तरफ, और उसके बदले हाइड्रोजन को दे दिया, ये ले भाई तू हाइड्रोजन ले ले, तो हाइड्रोजन इधर इस कार्बन के पास आ गया और डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया एंड यू गॉट द नाइट्रो ग्रुप हियर, राइट? So here there is a development of nitroalkane again. So this is, you bought what? Oxime. Oxime, this is ketoxime because दो अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप के बदले एक हाइड्रोजन आ जाता है तो अल्डोक्साइम, राइट? तो ऑक्साइम विद द trifluoroper acidic acid immediately gives the oxygen. Oxygen is easily captured by the nitrogen with the help of lone pair, and here they starts immediately the tautomerism. Tautomerism, it's nothing but the pulling of this pi bond and replacement with the active hydrogen which is attached on oxygen, right? ठीक है? Now let's start with the chemical properties of it. Reduction मतलब addition of hydrogen. So addition of hydrogen करने के लिए एकदम one of the best reagent, that is strong reducing agent we bought here, that is tin with HCl or ferrous with HCl. Similarly, tin with HCl or a ferrous with HCl, you produce 6 nascent hydrogen is required here, 6. छह हाइड्रोजन की जरूरत है भाई, क्यों? 4 तो वाटर बनाने में लग जाएंगे 2 ऑक्सीजन के साथ,
बचा हुआ 2 नाइट्रोजन पर अटैच होगा तो 6 हो गए कि नहीं? 6 जरूरत है, दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग 6 फटाफट निकालता है. नाउ दिस जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड समवॉट लेस reducing agent than this above. So here they removes only 4 hydrogen and 4 hydrogen इधर हमें मिलेगा जैसे ही, तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन वाटर निकालने में लग जाएगा. 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन निकालने में लग जाएगा. बचा कितना? 2. चलो ये तो निकल गया. अभी इसमें 2 हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड पाई बॉन्ड तोड़ के अटैच हो जाता है, तो NH OH ऑक्सीजन निकाल दिया 2 हाइड्रोजन ने, बचा हुआ 2 हाइड्रोजन ये पाई बॉन्ड तोड़ के अटैच हो गए. सिंपल. अभी क्या बना है ये? हाइड्रोक्सी, ये मिथाइल और ये अमाइन, हाइड्रोक्सी मिथाइल अमाइन बनाया. सो प्लीज मेक श्योर दैट आगे भी हम लोग इसका यूज करेंगे. जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, डेवलप्स ओनली 4 नेसेंट हाइड्रोजन एंड दिस 4 नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप को वीकली रिड्यूस कर रहे हैं. whereas स्टीन एंड HCl as well as ferrous in HCl easily removes the oxygen on it and completely fill it with the hydrogen and there is a development of amine. Yeah. चलो आगे हेलोजिनेशन, हेलोजन को ऐड करना है. हेलोजन, प्लीज मेक श्योर हेलोजन ऑलवेज बी हैपनिंग ऑन टू द एसिडिक हाइड्रोजन. सो ये नाइट्रो ग्रुप के बाजू में ये जो आपका अल्फा कार्बन है उसके हाइड्रोजन इज सो मच एसिडिक, उसके हाइड्रोजन काफी क्या है? एसिडिक है. हियर इज कॉल्ड एज 1 डिग्री नाइट्रो ग्रुप. क्या है ये जो 1 डिग्री नाइट्रो ग्रुप है, 1 डिग्री नाइट्रो ग्रुप में देयर इज 2 एसिडिक हाइड्रोजन. तो ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के लिए आई बॉट हियर 2 हैलोजेंस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोजेंस हम लोग लेके आए हैं. हियर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोजन लेके आए हैं इधर हम लोग, एंड दैट एक्चुअली है 4, राइट? तो 4 में से 2 ही काम के हैं, 2 निकालने के लिए 2 NOH लाए. आई रिपीट, 2 एसिडिक हाइड्रोजन के लिए 2 हैलोजन एंड 2 हैलोजन एक्चुअली लाए हैं अपन 4, तो 2 निकालने के लिए उसमें से 2 NOH लाए अपन, राइट? क्या हुआ? 2 Na ने 2 हैलोजन को निकाल दिया, बचा हुआ 2 हैलोजन. सिमिलरली ये 2 OH इज अ बेस किसके तरफ भागेगा? एसिड के तरफ. एसिड कहाँ पे है? अल्फा कार्बन पे. तो ये 2 बेस ने अटैक किया उधर, 2 एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दिया और वाटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट? अभी एक जगह खाली हो गई. ये 2 बेचारे 2 हैलोजन जो बच गए थे अभी कहाँ जाके अटैच होंगे? दिस अल्फा कार्बन पे, राइट? सिंपल. सो इधर अल्फा कार्बन पे 2 हैलोजन मिल चुके हैं एंड हैलोजिनेशन हैपेंस इनटू दी 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड. नाउ दिस इज ये 2 डिग्री कार्बन है तो इसको क्या बोलना चाहिए? 2 डिग्री नाइट्रो. सो 2 डिग्री नाइट्रो एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, एक ही, बराबर कि नहीं? तो एक ही हैलोजन की जरूरत है. लाए कितने? 2. तो एक को निकालने के लिए एक NaOH, सिंबल. एक NaBr निकल गया, एक NaBr निकल गया. बाकी क्या? ये आपका बेस किसकी तलाश में निकला? एसिड को निकाल के वाटर बनाया और ये जगह खाली हुई, बचा हुआ ब्रोमीन अटैचेस ओवर देयर. Which is there is no active hydrogen, no acidic hydrogen on this tertiary carbon, 3 degree amine. Do not go for halogenations. Simple. क्लियर है भाई? लाइफ में आगे बढ़ना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड का. अभी बात हुई, दिस अल्फा कार्बन इज एसिडिक हाइड्रोजन है भाई. तो इधर ये OH गया, NO अटैच हुआ अल्फा कार्बन पे. अल्फा नाइट्रोसो नाइट्रो अल्केन इज द नेम ऑफ इट. चलो अभी एक बात समझना, देयर इज अ टॉटोमेरिज्म. क्यों? ये है ना, ये डबल बॉन्ड को हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे रहे हैं, लाइक दैट. डबल बॉन्ड को ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट कर रहे हैं एंड दैट ऑक्सीजन इज कॉम्पेंसेटेड बाय दिस
हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, और इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज एसी फॉर्म. नाउ टॉटोमेरिज्म के बाद हियर whenever I react with NaOH, तो ये OH एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा और खुद ये बचा हुआ सोडियम अटैचेस ओवर देयर एंड इट गिव्स द रेड कलर. हेंस कलरफुल कलर डेवलप होने के साथ साथ ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज यूटिलाइज एज अ distinguished test to identify the 1 degree nitro compound. 1 degree nitro compound इस तरह से रिएक्शन कर करके रेड कलर प्रोड्यूस कर सकता है. चलो देखते हैं 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड. 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड में देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इमीडिएटली रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड के साथ H2O निकलने के बाद NO अटैच हो जाएगा उधर, बराबर है. NO अटैच होने के बाद नाउ देयर इज नो टॉटोमेरिज्म. क्यों? इसके पास और भी हाइड्रोजन नहीं है. एसिडिक हाइड्रोजन ना होने के हिसाब से आगे टॉटोमेरिज्म कर पाया नहीं. इसके लिए फर्दर ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया. NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया तो हेंस रेड कलर नहीं डेवलप कर पाया, वो अपना ब्लू कलर ही मेंटेन कर पाया, बस रेड की तरफ नहीं जा पाया. तो प्लीज मेक श्योर दैट 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड on the with nitrous acid goes up to blue color, ठीक है. एंड फाइनली ये 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड जो है which does not have acidic nitrogen at all, hence cannot react with nitrous acid also and cannot develop here the blue color also, hence it remains colorless. So conclusion, fast. So 1 degree नाइट्रो कंपाउंड्स और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके टॉटोमेरिज्म करके NaOH के साथ रिएक्शन करके वो रेड कलर डेवलप कर लेता है. whereas 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड ओनली रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड and can develop only blue color, cannot go for tautomerism, cannot go for red color. So it stops only at blue color only, right? And finally 3 degree nitro compound react with nitrous acid is not possible at all because of no acidic hydrogen inside it. Now going for the next reaction, that is reaction with aldehyde and ketone. So in aldehyde and ketone आपको अभी अभी बात हुई है कि ये अल्फा कार्बन एसिडिक है. एसिडिक है तो अपना एक हाइड्रोजन उसको दिया है, ले भाई मेरा हाइड्रोजन, ये अपना अल्डोल की तरह है. यस, H दिया, कार्बन, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, कार्बन की वैलेंसी स्टिल अनसेटिस्फाइड, बॉन्ड टूटेगा तभी तो H अटैच होगा, तो कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है एंड दिस कार्बन अटैचेस विथ ईच अदर एंड वेन एवर हीटेड विथ आउट, सो ये कंपाउंड बन गया था, हीट किया तो OH और H, ये एसिडिक हाइड्रोजन, OH गोज आउट, H2O बाहर निकला एंड हियर यू गॉट, क्या मिला आपको? डबल बॉन्ड, दोनों जाने के बाद डबल बॉन्ड, राइट? सो सिंपल. नाउ दिस अगेन अल्डिहाइड कीटोन ले आया मैं एक, एंड दिस इज द 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड. 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, अपना हाइड्रोजन देख के अटैच सिर्फ हो सकता है, ये OH हो गया, कार्बन और कार्बन अटैच हो गए. ना इसके बाजू में इधर एसिडिक हाइड्रोजन ना होने के कारण नाउ दिस कैन नॉट गो फॉर कंडेंसेशन. सिमिलरली 3 डिग्री नाइट्रो ग्रुप कैन नॉट रिएक्ट विद अल्डिहाइड एंड कीटोन. Now, very important note points, that is hydrolysis of 1 degree, 2 degree and 3 degree nitro compound. 1 degree nitro compound on hydrolysis forms carboxylic acid and hydroxylamine. Note down karo ye point, very important, can be proved with a huge big mechanism, so which is not there in your syllabus, so that's why I'm not taking here it out. Just you have to remember here that your 1 degree nitro compound in acidic hydrolysis gives carboxylic acid as well as hydroxylamine. Similarly, this is 2 degree nitro compound on hydrolysis gives ketone, nitrous acid, nitrous oxide. ठीक है? And 3 degree nitro compound does not go for the hydrolysis at all only. So इस तरह से hydrolysis के प्रोडक्ट दिमाग में फिट रखने हैं
of nitro compounds. See now, primary amines. ये प्राइमरी अमाइंस विथ 1 डिग्री कार्बन, आपको आगे देखा था ना अपन ने, ये प्राइमरी अमाइन के साथ 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी अमाइन के साथ 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी अमाइन के साथ 3 डिग्री कार्बन इज कनेक्टेड विद द प्राइमरी कार्बन. उसका ऑक्सीडेशन कर रहे विद द KMnO4 एसिडिक हाइड्रोजन, यू नो ट्रिमेंडस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन जैसे ही बाहर निकाला, ये दोनों हाइड्रोजन से वाटर बनाया उसने और दोनों डबल बॉन्ड बना दिया, अल्ट इमाइन. NH is called as imine. Now further continuously oxidation happens of it. Oxidation कर करके, very simple thing is that oxidation जैसे इधर हुआ तो it converted into the aldehyde CHO. Please make sure that not carboxylic acid. Here it stops at aldehyde only and NH amine में convert हो जाता, ammonia में convert हो जाता है. Similarly, a 2 degree amine on oxidation, similarly it can also go for aldimine. Aldimine करने के बाद ऑक्सीजन से ये C ऑक्सीजन लेके कीटोन में कन्वर्ट होता है, ये अल्डिहाइड, ये कीटोन. So 1 degree carbon with 1 degree amine on oxidation with strong oxidizing agent gives the aldamine followed by aldehyde. Similarly, 2 degree carbon with a 1 degree amine with a strong oxidizing agent KMnO4 in acidic medium gives aldamine followed by the ketone. But here very important thing, ये हम लोग ने देखा था लास्ट कि भाई अगर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अगर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये कार्बन ऑक्सीडेशन के लिए नहीं जाता है एंड दिस अमोनिया गोज फॉर ऑक्सीडेशन एंड अमोनिया ने अपना ऑक्सीडेशन करके NO2 ग्रुप बनाया है. सो सिंपल इज दैट, राइट? नाउ गोइंग फर्दर, ध्यान से देखो भाई फटाक से. नाउ दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन विथ कॉन्सेंट्रेटेड what? Concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. It's a nitrating mixture, right? So it will produce NO2 plus as a electrophile. एंड आपको पता है कि ये नाइट्रो ग्रुप इज अ व्हाट, मेटा डायरेक्टिंग, तो इसने मेटा पे अटैच किया. फर्दर इफ यू स्टिल कंटिन्यूज विद द नाइट्रेशन तो इट विल, ये दोनों का मेटा ये आएगा, राइट? सो 1,3,5 ट्राइन नाइट्रोबेंजीन इज डेवलप्ड. सिमिलरली फ्यूमिंग H2SO4 डेवलप SO3H अटैच करता है. SO3H इज अ मेटा डायरेक्टिंग, तो SO3H इधर अटैच हुआ. सिमिलरली ये आपका क्लोरीन अटैच ऑन द मेटा पोजिशन, देयर इज नो डाउट इनसाइड इट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर FeHCl SnHCl हम लोग ने देखा विथ व्हाट, H2PD, द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, डेवलप लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, एंड वो नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में कन्वर्ट कर देता है, राइट? सिमिलरली जिंक अमोनियम क्लोराइड, मैंने बोला था याद रखने के लिए, डेवलप्स ओनली 4 हाइड्रोजन एंड NaOH में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रो ग्रुप को. याद आया? पीछे से देखो आप. एंड ये वन मोर रिड्यूसिंग एजेंट जिसने सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन डेवलप करके ये NO2 में से एक ही ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और सिर्फ NO बचा अंदर. तो याद रखना FeH2 और FeHCl. FeHCl is a strong reducing agent, whereas FeH2O is weakest reducing agent. Which develops only 2 nascent hydrogen, जिससे एक ही ऑक्सीजन बाहर निकला बस. अभी थोड़ा सा फोकस करो इधर. इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन कर सकते हैं अपन with dilute H2SO4 in nitro compound and concentrated H2SO4 in nitro compound. So dilute H2SO4 is very simple to remember. With a huge mechanism, you can prove it that the nitro group is converted into the amine. But in the concentrated H2SO4, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड जैसा NaOH में कन्वर्ट किया. एंड फर्दर द इलेक्ट्रिक पावर वी डू द रीअरेंजमेंट. ये H इधर दे देता है और OH उसकी जगह पे दे देता है. तो OH उसकी जगह पे आया और ये एकदम एक दूसरे के सामने OH, और ये H इधर आया तो NH2 बन गया, ठीक है. नाउ
final reaction, some of final reactions is there. That is CH3OH and NaOH. That is alcohol with alkalis, glucose with alkalis, and sodium arsenide will connect two molecule, coupling reaction, two नाइट्रोबेंजीन को कनेक्ट कर देता है. और उसके देखो, एक नाइट्रोबेंजीन में 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोबेंजीन में और मतलब 2 नाइट्रोबेंजीन मिलके 4 ऑक्सीजन है. सो चारों चार पहले निकाल दो आप, दोनों कनेक्ट हो जाता है इंटरनली. और एक ने अपना लोन पेयर से एक ऑक्सीजन को पकड़ के रखा हुआ रहता है. इसके लिए इसको बोलते हैं एजो, मतलब ये एन डबल बॉन्ड एन, एजो ऑक्सीजन पकड़ के रखा है, इसके लिए ऑक्सी बेंजीन. सो ये ऑक्सीजन निकालना अगर आपको, तो एक जिंक भी ऐड करना है, वो अपन देखते हैं. ये ऑक्सीजन अगर निकालना है तो एक साथ में जिंक डाल दो आप बस, तो चारों चार ऑक्सीजन निकल जाएंगे और 2 नाइट्रोबेंजीन एक दूसरे से कनेक्ट पाए जाते हैं. इस तरह से एजोबेंजीन आपको मिलते रहता है. यस, नाउ सी दिस, अगर आपने जिंक डाला तो वो ऑक्सीजन चले गया, एजोबेंजीन बन गया. सिमिलरली अल्कोहल के बदले अगर वाटर यूज किया तो ये लोग और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे. देखो, सम ऑफ हाइड्रोजन से मतलब ये दोनों सफिशिएंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके 3 ऑक्सीजन को निकालने में कामयाब रहते हैं, राइट. जिंक डालने पे चौथा ऑक्सीजन भी निकल गया ना. ये डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन और दो H2O, अगर वो अल्कोहल के बदले वाटर लेते हैं तो और 2 हाइड्रोजन ये डेवलप करके देता है, which will break this N double bond N. So अजो ग्रुप से हाइड्रेजाइन बन गया, ये हाइड्रेजोबेंजीन. ठीक है. एंड फाइनली अ लास्ट पार्ट, दैट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन का टेस्ट है ये म्यूलिकिन बार्कर टेस्ट. म्यूलिकिन बार्कर टेस्ट क्या है? ये नाइट्रो ग्रुप को पहचानने के लिए एक वीक मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट लेके आया, जो पता है ना NaOH बना दिया. नाउ NaOH को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट जो ऐसे ऑक्सीजन निकालता है वेरी स्लोली, इसने ये हाइड्रोजन लेके वाटर बना दिया और NO में कन्वर्ट कर दिया इसको. एंड टॉलेंस रिएजेंट में होप यू नो दैट इट्स अ सिल्वर भी रहता है अंदर. ठीक है. तो द सिल्वर रिड्यूसेस हियर, उसको ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हुआ, तो सिल्वर मिरर इफेक्ट के जैसे चमकने लगता है. एंड हियर यू गेट द सिल्वर. सिंपल है, क्लियर. So here we'll stop today, and this is we have learned today the all preparation of nitrobenzene with all reactions. Each and individual reaction को बरोबर नोट डाउन कर करके लिख के आप उसको प्रैक्टिस करो. And please don't forget to subscribe for the continuous notification. And if you like the lecture, then also you press on like button. Thank you.